آغاز میں آپ کو بتائیں وزیر داخلہ رانا ثناءاللہ لاہور ہائی کورٹ راولپنڈی بینچ پہنچ گئے ہیں۔ عدالت میں رانا ثناءاللہ کی جانب سے وارنٹ گرفتاری کے خلاف اور ایف آئی آر خارج کرنے کی درخواست پر سماعت جاری ہے۔ گزشتہ سماعت پر عدالت عالیہ نے رانا ثناءاللہ کے وارنٹ گرفتاری معطل کر دیے تھے۔ اسی پر تفصیلات بھی جان لیتے ہیں۔ نمائندہ نیوز خالد چودھری ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ خالد بتائیے گا اس وقت رانا ثناءاللہ پہنچ چکے ہیں عدالت؟ جی بالکل، رانا ثناءاللہ اب سے کچھ دیر قبل ہی جو ہے ہائی کورٹ پنڈی بینچ پہنچ چکے ہیں اور آج اس حوالے سے کیس کی سماعت ہے، جبکہ اس مقدمہ میں ڈی جی اینٹی کرپشن کو بھی آج طلب کیا گیا تھا، تاہم وہ بیماری کے باعث پیش نہیں ہو سکے تھے اور اس وقت عدالت نے پٹیشنر وزیر داخلہ رانا ثناءاللہ اور ڈی جی اینٹی کرپشن کو 12 بجے طلب کرنے کا وقت دے رکھا تھا۔ سرسری سماعت کے بعد عدالت عالیہ نے یہ حکم جاری کیا تھا۔ وزیر داخلہ اس وقت یہاں پر موجود ہیں اور کیس کی سماعت جاری ہے، جبکہ لیگل ٹیم کے ذریعے یہ پٹیشن دائر کی گئی تھی جس پر ملک اسرار الحق اور دیگر جو وکلا ہیں انہوں نے آج اس حوالے سے عدالت سے رجوع کیا تھا۔ گزشتہ سماعت پر بھی عدالت عالیہ نے رانا ثناءاللہ کے وارنٹ گرفتاری معطل کر دیے تھے اور آج ضمانت کے حوالے سے رانا ثناءاللہ خود یہاں پر پیش ہوئے ہیں اور کچھ ہی دیر میں سماعت مکمل ہونے پر صورتحال سامنے آ جائے گی۔ جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کا۔ ادھر اسلام آباد ہائی کورٹ نے پی ٹی آئی کے ممکنہ لانگ مارچ کے تناظر میں اسلام آباد پولیس کو شہر کو غیر ضروری ہراساں کرنے سے روک دیا ہے۔ عدالت نے تھانہ بنی گالہ پولیس پر برہمی کا اظہار کیا، کہا یہ ہراسمنٹ ہے، کیسے آپ پر کال کر سکتے ہیں، پولیس لسٹوں سے متعلق آئندہ سماعت پر ہمیں مطمئن کیا جائے۔ تفصیلات جان لیتے ہیں۔ نمائندہ نیوز ذیشان سید ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ذیشان بتائے گا اسلام آباد ہائی کورٹ کی جانب سے مزید کیا ریمارک سامنے آئے؟ دیکھیے عائشہ، یہ اسلام آباد پولیس کی جانب سے پی ٹی آئی کے ممکنہ کارکنان اور رہنماؤں کے لسٹ بنائی گئی تھی اور اس کو مختلف تھانوں میں دیے گئے تھے کہ ان لوگوں سے بیانی حلفی لے یا ان کو گرفتار کیا جائے، جس پر اسلام آباد ہائی کورٹ کے سابق جو ایڈوکیٹ جنرل ہے نیاز اللہ نیازی کا نام بھی تھا اور انہوں نے اسلام آباد ہائی کورٹ میں درخواست دائر کی تھی۔ اب سے کچھ دیر پہلے ان کی درخواست اسلام آباد ہائی کورٹ کی چیف جسٹس اطہر من اللہ نے سماعت کی اور اسلام آباد پولیس پر خاصی برہمی کا اظہار کیا۔ عدالت کی جانب سے حکم جاری کیا کہ شہریوں کو غیر ضروری طور ہراساں نہ کرے، شہریوں کو تھانے بلا کر شیورٹی بانڈ کے حوالے سے جو اسٹیٹ کونسل نے عدالت کو مطمئن دی، عدالت اس سے مطمئن نہ ہو سکی اور عدالت نے کہا کہ اس قسم کے جو لسٹیں ہیں جو مختلف تھانوں میں بھجوائی گئی ہے وہ اسلام آباد ہائی کورٹ کو آئندہ سماعت پر جو ہے وہ اسی لسٹوں کے حوالے سے سماعت پر عدالت کو مطمئن کرے۔ تاہم جو رپورٹ سامنے پیش کی گئی ہے تو عدالت نے یہ بھی استفسار کیا کہ یہ کس قسم کی لسٹیں آپ بنا رہے ہیں۔ آئی جی صاحب نے جس پر بتایا گیا ان کو عدالت کو کہ آئی جی کی طرف سے یہ لسٹیں بنائی گئی ہے، لیکن چیف جسٹس کی جانب سے برہمی کا اظہار کیا اور کہا کہ آپ ہراسمنٹ جو ہے کہ کسی کو اس طرح ہراس نہیں کر سکتے۔ جی ٹھیک ہے، کسی کو ہراس نہیں کیا جا سکتا۔ بہت شکریہ آپ کا ذیشان سید۔ عمران خان کا بلہ خوب چلا، ضمنی انتخاب کا مارکہ مار لیا۔ تحریک انصاف قومی اسمبلی کی 8 میں سے 6 حلقوں سے کامیاب ہو گئی ہے، 2 سیٹوں پر پیپلز پارٹی نے قبضہ کر لیا ہے۔ تفصیلات اس رپورٹ میں۔ عمران خان کا بلہ پھر چل گیا، تحریک انصاف ضمنی انتخابات میں قومی اسمبلی کی 8 میں سے 6 نشستوں پر فاتح قرار، 2 نشستیں پیپلز پارٹی لے اڑی۔ عمران خان خیبر پختونخوا سے 3 سیٹیں جیت گئے، پنجاب کے 2 حلقوں میں کامیاب، کراچی سے 1 سیٹ جیتی، دوسری ہار گئے۔ این اے 31 پشاور میں عمران خان 57,824 ووٹ لے کر کامیاب، اے این پی کے امیدوار غلام احمد بلور 32,253 ووٹ لے سکے۔ مردان کے حلقہ این اے 22 میں کپتان 76,681 ووٹ لے کر فتح یاب، جے یو ایف اے کے مولانا قاسم 68,181 ووٹ حاصل کر سکے۔ این اے 24 چارسدہ میں عمران خان نے 10,000 کی بھاری لیڈ سے اے این پی کے رہنما ایمل ولی خان کو ہرایا۔ عمران خان نے 78,589 جبکہ ایمل ولی خان 68,356 ووٹ حاصل کر سکے۔ این اے 108 فیصل آباد میں عمران خان نے 99,841 ووٹ لے کر فتح سمیٹی، نون لیگ کے عابد شیر علی 75,266 ووٹ لے کر رنر اپ رہے۔ این اے 118 ننکانہ صاحب میں بھی عمران خان نے 90,180 ووٹ حاصل کر کے جیت اپنے نام کی۔ نون لیگ کی شجرا منصب علی 78,024 ووٹ حاصل کر سکیں۔ ملتان میں پی ٹی آئی کو بڑا جھٹکا، پی ڈی ایم کے امیدوار علی موسیٰ گیلانی نے پی ٹی آئی کو 20,000 ووٹوں کے بڑے مارجن سے پچاڑ دیا۔ 8 میں سے 6 سیٹیں جیت لی ہیں، لیکن عمران خان کو کراچی کے ایک حلقے سے شکست کا سامنا بھی کرنا پڑا ہے اور دوسری میں جیت کا مزہ چکھ لیا۔ شہر قائد کے دونوں بڑے اور اہم حلقوں کا احوال جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔
कराची के 2 हलकों NA 239 और NA 237 में ज़िमनी इंतखाब का हाई वोल्टेज टाकरा। NA 239 में PTI के उम्मीदवार इमरान खान नियाजी ने 50,014 वोट हासिल करके जीत अपने नाम की। MKM पाकिस्तान के उम्मीदवार नैयर रजा ने 18,116 वोट हासिल करके दूसरी पोजीशन समेटी। तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के उम्मीदवार मोहम्मद यासीन 7,953 वोट लेकर तीसरे नंबर पर रहे। दूसरी जानिब कौमी असेंबली के हल्का NA 237 में तीर चल गया। जियालू के उम्मीदवार हकीम बलोच ने 32,567 वोट लेकर इमरान खान को शिकस्त से दोचार किया। कराची ने उसको रिजेक्ट किया, टोटली कराची ने उसको रिजेक्ट किया। खान साहब जमहूरी तरीक अपनाएं और ये लॉन्ग मार्च ये खत्म करें। इमरान खान 22,493 वोट लेकर दूसरे नंबर पर रहे, जबकि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के उम्मीदवार समीउल्लाह 2,956 वोट लेकर तीसरे नंबर पर रहे। PTI ने पीपल्स पार्टी से शिकस्त को मानने से इनकार कर दिया। इमरान इस्माइल समेत दीगर रहनुमाओं ने पीपल्स पार्टी पर धांधली का इल्जाम आयद कर दिया। ज़िमनी इंतखाबात में कामयाबी चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान ने पार्टी के सीनियर रहनुमाओं का अहम इजलास आज तलब कर लिया। इमरान खान आइंदा की हिकमत अमली से मुताल्लिक ब्रीफिंग भी देंगे। चेयरमैन PTI आज शाम एक अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगे। आगे बढ़ेंगे। सूबाई वजीर सईद गनी कहते हैं कि पीपल्स पार्टी ने हारी हुई सीटें वापस ले ली हैं। कराची के लोगों ने पीपल्स पार्टी पर भरपूर एतमाद का इजहार किया। उम्मीद है कि लियानी की शिकस्त पर भी जल्द इलेक्शन होगा। कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए सईद गनी ने कहा कि मुल्तान में अली मूसा गिलानी की फतह PDM की कामयाबी है। इमरान खान ने नशिस्तों पर शिकस्त के डर से अपने उम्मीदवार खड़े नहीं किए। 2018 में धांधली के जरिए हमसे छीनी गई थी। कल मलीर के लोगों ने वो अपनी नशिस्त दोबारा वापस ले ली। ना सिर्फ ये कि नशिस्त वापस ले ली, बल्कि धांधली के ज़रिए ये नशिस्त छीन कर जिस आदमी को वज़ीर आज़म बनवाया गया था, उसी शख्स को मलीर के लोगों ने इबरतनाक शिकस्त से जद्दोजहद किया है। मुल्तान की नशिस्त, जहाँ से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार अली मूसा गिलानी बहुत वाज़ेह अक्सरियत से जीते हैं। ये जो वोटों का तनासुब है वो इस बात को साबित करता है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पर लोगों का आज भी उतना ही एतमाद है जितना 2018 में था। उधर अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं कि कराची के लोग कल वोट डालने नहीं निकले तो जमहूरियत पसंद लोगों को ये सोचने की ज़रूरत है। कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा कि कराची के शहरी जिन्हें मैंडेट देते हैं वही कराची को नज़रअंदाज कर देते हैं। पीपल्स पार्टी MKM समेत किसी जमात ने कराची को कोई बड़ा मंसूबा नहीं दिया। मुस्लिम लीग नून बताया कि उसने कराची की तरक्की के लिए क्या काम किया है। कराची के शहरी साफ सुथरा गंदगी से पाक शहर चाहते हैं। वो मसाइल के हल के लिए बल्दियाती इंतखाबात चाहते हैं। कौमी असम्बली की तरह पंजाब असम्बली की 3 नशिस्तों पर होने वाले ज़िमनी इंतखाब में भी तहरीक इंसाफ को बरतरी हासिल रही। 3 में से 2 सीटों पर तहरीक इंसाफ ने मैदान मार लिया। पंजाब असम्बली के 3 हलकों का ज़िमनी इलेक्शन भी PTI के नाम। 3 में से 2 सीटें जीत लीं। PP 241 बहावल नगर और PP 209 खानेवाल में तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार बड़ी मार्जिन से कामयाब। गैर हतमी गैर सरकारी नताइज के मुताबिक PP 209 खानेवाल में PTI के मोहम्मद फैसल खान न्याजी 71,586 वोट लेकर कामयाब हुए। नून लीग के चौधरी ज़ियाउर रहमान 57,864 वोट लेकर दूसरे नंबर पर रहे। PP 241 बहावल नगर में PTI के मोहम्मद मुजफ्फर खान 59,957 वोट लेकर कामयाब हुए। नून लीगी उम्मीदवार अमानुल्लाह सत्तार ने 48,147 वोट हासिल किए। ज़िमनी इंतखाब में नून लीग सूबाई असम्बली की वाहिद नशिस्त मिली। PP 139 शेखुपुरा से इफ्तिखार अहमद बंगू 40,829 वोट लेकर फतेह याब हुए। PTI के मोहम्मद अबू बकर ने 37,712 वोट हासिल किए। लीगी रहनुमा ने अपनी जीत को अवाम, नवाज शरीफ और राना तनवीर की जीत करार दिया। जित के साबित किया है कि नून दा मियां नवाज शरीफ ने एक पैगाम मैसेज देना चाहते हैं कि अगे भी नून दा सी, हुण भी है, आइंदा भी रहेगा। इफ्तिखार बंगू का कहना था कि ये हल्का नून लीग का गढ़ था और है और हमेशा रहेगा। जलील शेखपुरी ने हल्के के अवाम के साथ जो किया, आज अवाम ने उसका बदला चुका दिया।
तहरीक इंसाफ की जानिब से कौमी असम्बली में ना बैठने का मामला है और तहरीक इंसाफ को असम्बली में जाने की हिदायत देने के लिए सुप्रीम कोर्ट में एक दरख्वास्त दायर कर दी गई है। दरख्वास्त में ये इस्तदा की गई है कि तहरीक इंसाफ के तमाम अरकान को असम्बली में जाने के अहकामात जारी किए जाएं। इमरान खान के 9 हलकों में से इलेक्शन लड़ने से मुल्क के वसाइल का नुकसान हुआ है। उधर वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने खुजदार और सोबतपुर का एक रोज़ा दौरा किया है। सैलाब से मुतासरा इलाकों का मुआयना भी किया गया। वज़ीर-ए-आज़म को सैलाब से मुतासरा इलाकों में बहाली के कामों पर ब्रीफिंग दी गई। वज़ीर-ए-आज़म रिलीफ और बहाली के लिए जारी कामों का जायजा लेने के लिए सोबतपुर का दौरा कर रहे हैं। ज़िला इंतज़ामिया सैलाब मुतासरीन की इमदाद और बहाली के लिए जारी इक़दामात पर ब्रीफिंग भी देगी। वज़ीर-ए-आज़म सरबराह BNP नवाब अख्तर मेंगल की रिहाइशगाह भी जाएंगे। और अभी ये खबर कि साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान ने ममनुआ फंडिंग केस में स्पेशल सेंट्रल कोर्ट से रुजू कर लिया है। इमरान खान आज दिन 1:30 बजे स्पेशल सेंट्रल जज की अदालत में पेश होंगे। इमरान खान ने ममनुआ फंडिंग केस में दरख्वास्त ज़मानत दायर कर दी है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इमरान खान की कल तक की हिफाजती ज़मानत भी मंजूर कर रखी है। दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि FIA को उनकी गिरफ्तारी से रोका जाए। आगे बढ़ेंगे। रहनुमा काफ लीग मोनस इलाही के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग मुकदमे के इखराज का ये केस है। FIA का लाहौर हाई कोर्ट के फैसले को चैलेंज करने का फैसला। FIA प्रोसिक्यूशन लाहौर की टीम ने तमाम नकात इस्लामाबाद हेड ऑफिस को इरसाल कर दिए हैं। हेड ऑफिस की मंजूरी के बाद फैसले को चैलेंज किया जाएगा। मतरूका वक्फ इमलाक बोर्ड की जानिब से लाल हवेली से बेदखली के नोटिस का ये मामला है और शेख रशीद के भतीजे शेख राशिद शफीक वकील के साथ अदालत में पेश हो गए हैं। वकील ने दलाइल देते हुए कहा है कि मरकजी केस अदालत में चल रहा है, 24 तारीख मुकर्रर है। सियासी इंतकाम के तहत बेदखली का ये नोटिस भिजवाया गया है। अब लाल हवेली पर कब्जे के लिए पुलिस के जरिए चढ़ाई करना चाहते हैं। मकामी अदालत ने मतरूका वक्फ इमलाक को नोटिस जारी कर दिया। जज खुर्शीद आलम भट्टी ने डेप्यूटी एडमिनिस्ट्रेटर मतरूका वक्फ इमलाक आसिफ खान को कल तलब कर लिया। और साबिक वज़ीर दाखिला शेख रशीद कहते हैं कि इमरान खान का 8 में से 6 नशिस्तें जीतना आलमी रिकॉर्ड है। सरबराह अवामी मुस्लिम लीग ने अपने ट्वीट में कहा है कि 16 वजारतों की तहकीक और तफ्तीश में तमाम इदारों को मेरे खिलाफ कोई चीज़ नहीं मिली। मेरे खिलाफ 3 मरले की लाल हवेली निकाल दी है, जो कोई 9-0 नहीं है। नाअहल हुक्मरान अपने लिए रुसवाई और हमें मजीद पजीराई दे रहे हैं। लाल हवेली एक तारीख है जिसे कोई ख़त्म नहीं कर सकता। नाज़रीन, दौरे जदीद में भी मिट्टी के बर्तनों की अहमियत कम नहीं हुई है। रावलपिंडी के कदीमी बाजार कम्हारों का अहाता में दस्तयाब मिट्टी के खूबसूरत बर्तन लोगों को अपनी तरफ मतवज्जो कर रहे हैं। दुकानों पर आज भी लोग दूर दराज से आते हैं और घरेलू इस्तेमाल की अशिया खरीद कर ले जाते हैं। इसी पर रिपोर्ट कर रही हैं आमना जंजुआ। रावलपिंडी के कदीमी बाजार में कुम्हार हजारों साल से मिट्टी के बर्तन बनाने का फन जारी रखे हुए हैं। घड़े, मटके, हांडी और मिट्टी से बनी दूसरी अशिया इंतहाई खूबसूरत दिखाई देती हैं। मेडिकल साइंस भी इस हकीकत को तस्लीम करती है कि मिट्टी से बने ये खूबसूरत और दिलकश बर्तन इंसान को कई बीमारियों से दूर रखते हैं। खवातीन कहती हैं मिट्टी की हांडी में खाना बनाने का जो जायका आता है, इसकी लज्जत किसी और धात के बर्तन में कहाँ। मिट्टी के बर्तन बहुत अच्छे और अच्छे हैं, खूबसूरत बने हुए हैं और हमें ये ज़रूर अपनी डेली लाइफ में यूज़ करने चाहिए। हांडी वगैरह उसमें बनाएं तो टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है हांडी का। रावलपिंडी के कदीमी कुम्हारों के अहाते के दुकानदार कहते हैं शहरियों में अब एक बार फिर मिट्टी के बर्तनों का रुझान बढ़ रहा है। इस सन्नत का मुख्तलिफ अंदाज से जारी रहना ये जाहिर करता है इससे इंसान का रिश्ता बहुत पुराना है और आइंदा भी जारी रहेगा। मिट्टी के बर्तन न सिर्फ हमारी सेहत के लिए मुफीद हैं बल्कि हमारे कल्चर का खूबसूरत हिस्सा भी हैं। कैमरामैन राजा बात के साथ आमना जंजुआ, न्यूज़ इस्लामाबाद। ब्रेक के बाद आपको बताएंगे कराची में चोरी, डकैती और कत्ल की वारदातें उरूज पर हैं। सैकड़ों शहरी रोज अपने जानो माल से हाथ धो बैठते हैं। शहर में संगीन जराइम की रोकथाम के लिए सेफ सिटी प्रोजेक्ट एक बार फिर इल्तवा का शिकार हो गया है। सिंध हुकूमत ने रवा बरस सेफ सिटी प्रोजेक्ट का बजट मंजूर किया था, लेकिन फंड्स फराहम नहीं किए गए। तफसीलात इस रिपोर्ट में।
कराची में दहशत गर्दी के वाकयात और संगीन जुराइम की रोकथाम के लिए सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने कराची बदमनी केस में साल 2016 में सेफ सिटी प्रोजेक्ट शुरू करने का हुक्म दिया था। सिंध हुकूमत ने सेफ सिटी प्रोजेक्ट के लिए साल 2016 में 6 करोड़ रुपए मुख्तस किए, लेकिन सिर्फ दावे किए जाते रहे और मंसूबा खटाई में चला गया। दिसंबर साल 2020 में सिंध हुकूमत ने 29 अरब रुपए में इस मंसूबे के लिए NRTC के साथ MOU साइन किया, लेकिन फिर नामालूम वजूहत की बिना पर मंसूबे पर अमल नहीं किया जा सका। एक मरतबा फिर शहर में स्ट्रीट क्राइम दीगर जुराइम के बढ़ते वाकयात के बाद IG सिंध गुलाम नबी मेमन की काविशों से सिंध हुकूमत ने रवां बरस सेफ सिटी मंसूबे की तकमील के लिए 22 अरब रुपए का बजट मंजूर किया। साल 2022 जुलाई में सिंध हुकूमत ने स्पेशल सिक्योरिटी यूनिट के DIG डॉक्टर मकसूद अहमद को DG सिंध सेफ सिटी अथॉरिटी तैनात किया। कराची में अभी हम जो सेफ सिटी का प्रोजेक्ट शुरू करने जा रहे हैं उसमें टोटल 12,000 कैमरा और पहले मरहले में 6,000 कैमरा जो कि एक पहले साल के अंदर हम लगाएंगे। अक्टूबर के 2 हफ्ते भी गुजर गए, लेकिन सिंध हुकूमत ने बजट मंजूर होने के बावजूद सेफ सिटी प्रोजेक्ट के लिए 22 अरब रुपए का फंड फराहम नहीं किया, जिसकी वजह से सेफ सिटी प्रोजेक्ट खड़ाई में पड़ गया। जरा का कहना है कि सिंध में बारिशों और सैलाबी सूरत की वजह से सिंध हुकूमत फंड जारी न कर सकी। कराची और अंदरूनी सिंध में सेफ सिटी प्रोजेक्ट इस मंसूबे को 2 साल में मुकम्मल किया जाना था। रवां बरस कराची में 6,000 कैमरे भी लगाए जाने थे। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जान लेते हैं। नुमाइंदा न्यू न्यूज़ नसीम आदिल हमारे साथ मौजूद हैं। नसीम, क्यों ये मामला इतना लटकता जा रहा है? देखें, कराची में दहशत गर्दी और संगीन जुराइम पर काबू पाने के लिए रवां साल के आखिरी 6 माह में 6,000 जदीद कैमरे जो 12 मेगापिक्सल के जो कैमरे हैं वो कराची में और कराची के दाखिली और खारजी जो रास्ते हैं जो 25 बनते हैं वहाँ पे ये नस्ब की जाने से मजमूई तौर पे सिंध और कराची में 12,000 के करीब जदीद कैमरे लगाए जाने से, लेकिन अभी तक एक भी कैमरा नहीं लग सका है। एक जो पोल है उस पोल के ऊपर 5 जदीद कैमरे नस्ब होने थे। कुछ जो कराची का रेड जोन है और कराची के दाखिली और खारजी रास्ते हैं वहाँ पे ये कैमरे लगने थे और साल 2023 में इस मंसूबे को मुकम्मल होना था, लेकिन साल 2022 भी गुजरने वाला है और ये मंसूबा अब तक अल्तबा का शिकार है। जी बहुत शुक्रिया आपका। कराची में जराइम की शरह उरूज पर है, जबकि सेफ सिटी जैसा एक अहम मंसूबा शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ में भी नाकाम है। सूबाई हुकूमत की जानिब से ऐसे किसी मंसूबे में दिलचस्पी नहीं दिखाई जा रही। इसी पर मज़ीद तफसीलात भी जानेंगे अपने नुमाइंदे से। कराची में जराइम की शरह उरूज पर पहुँच चुकी हैं और सेफ सिटी जैसा ये अहम मंसूबा जो शहरियों का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बना सकता है, लेकिन इस मंसूबे पर कोई तवज्जो नहीं दी जा रही। और यहाँ पर कुछ सवालात भी उठते हैं कि आखिर क्यों इस मंसूबे पर कोई तवज्जो नहीं दी जा रही, क्यों दिलचस्पी नहीं दिखाई जा रही। सेफ सिटी जैसा ये अहम मंसूबा है और शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ में ये नाकाम है। सूबाई हुकूमत की जानिब से इस मंसूबे पर कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई जा रही और दूसरी जानिब कराची में जराइम की शरह बेकाबू होती जा रही है। शहरी बढ़ते जराइम की वजह से दिन ब दिन गैर महफूज होते जा रहे हैं और ये सेफ सिटी जैसा अहम मंसूबा जिस पर हुकूमत की जानिब से तवज्जो नहीं दी जा रही। सवालात अपनी जगह उठते हैं कि तवज्जो क्यों नहीं दी जा रही इस अहम मंसूबे पर, जिससे शहरियों की जो सिक्योरिटी है उसे यकीनी बनाया जा सकता है। लेकिन इस मंसूबे पर उस तरह से कोई ना पेशरफ सामने आई है, ना ही इस मंसूबे पर उस तरह से सूबाई हुकूमत की जानिब से कोई तवज्जो दी जाती है। शहरी बढ़ते जराइम की वजह से गैर महफूज होते जा रहे हैं। इसी पर मज़ीद तफसीलात भी जान लेते हैं। नुमाइंदा न्यू न्यूज़ अलाउद्दीन खानज़ादा हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मज़ीद तफसीलात भी जानेंगे। अलाउद्दीन, सबसे पहले तो ये बताएगा कि प्राइवेट कैमरों को भी सेफ सिटी मंसूबे का हिस्सा बनाया जाना था, क्या उस पर कोई पेशरफ्त हो सकी है? अलाउद्दीन से रब्ता करेंगे और उनसे जानने की कोशिश करेंगे। कराची में जराइम की शरह उरूज पर पहुंच चुकी है और बढ़ते जराइम के बावजूद सेफ सिटी जैसे एक अहम मंसूबे पर उस तरह से कोई तवज्जो नहीं दी जा रही है। 6,000 कैमरे लगाए जाने थे कराची में सेफ सिटी मंसूबे के तहत और इस मंसूबे को 2 साल में मुकम्मल किया जाना था, लेकिन ये मंसूबा खटाई में पड़ता दिखाई दे रहा है। इसी पर तफसीलात भी जानेंगे। अलाउद्दीन खानज़ादा से हम बात करने की कोशिश करेंगे और हुकूमत सिंध की जानिब से क्या मौक़िफ़ सामने आया है, इस मंसूबे पर क्यों तवज्जो नहीं दी जा रही है, वो भी जानने की कोशिश करेंगे। अलाउद्दीन, सबसे पहले तो ये बताएगा कि हुकूमत सिंध की आखिर तरजीहात क्या हैं, कुछ पता चल सका इस मंसूबे पर क्यों तवज्जो नहीं दी जा रही है, क्या मौक़िफ़ है हुकूमत सिंध का? भाई देखिए, आज की सूरत हाल जो है वो तो कतई मुख्तलिफ है, इसलिए कि सैलाब की कैफियत के बावजूद जो है वो इस मामले को दूसरी और तीसरी तरजीह पर डाल दिया गया है।
کیونکہ آدھا سندھ جو ہے وہ سیلاب میں ڈوب چکا ہے، لوگ پریشان ہیں، لوگوں کے گھر تباہ ہو گئے ہیں. یہ بات آج تو سمجھ میں آتی ہے، لیکن چونکہ یہ 2016 سے چلنے والا منصوبہ اب 2022 ہو گئے ہیں تو اسے 2018 میں مکمل ہو جانا چاہیے تھا. حکومت سندھ کی غیر سنجیدگی کا بھی اس میں عمل دخل ہے. حکومت سندھ نے اس طرف توجہ نہیں دی، چونکہ معاملہ دیکھیے حکومت سندھ اور کراچی جو ہے، کراچی کو حکومت سندھ دارالخلافہ تو مانتی ہے اپنے، یعنی یہ تو تسلیم کرتی ہے کہ جو کراچی جو ہے وہ سندھ کا کیپٹل ہے، لیکن اس کو کیپٹل والی حیثیت دینے سے نامعلوم وجوہات کی بنا پہ گریزاں ہیں. اگر 2016 سے یہ منصوبہ 2018 تک مکمل ہو جاتا تو شہر میں بہت زیادہ امن و امان کی صورتحال بہتر ہوتی، اور امن و امان کی صورتحال بہتر ہونے کا نتیجہ یہ نکلتا کہ یہاں انویسٹمنٹ ہوتی، لوگ کاروبار کرتے، کاروبار فلورش ہوتا، باہر کے سرمایہ کاری ہوتی. وہ سب کچھ نہیں ہو سکا. آج اگر ہم یہ کہیں 2022 میں کہ جی پیسے نہیں جاری ہو رہے، تو آج یہ بات سمجھ میں آتی ہے، کیونکہ سیلاب سے بدترین متاثرہ جو علاقے ہیں ان کی ریہیبلیٹیشن، لوگوں کی زندگی بحال کرنے کا عمل جو ہے وہ سیف سٹی سے کہیں زیادہ اہمیت رکھتا ہے. آج تو یہ بات سمجھ میں آتی ہے، لیکن 2016 سے لے کے 2021 تک کا معاملہ جو ہے وہ سمجھ میں نہیں آتا. ٹھیک ہے، علاؤالدین خانزادہ ہمارے ساتھ موجود تھے اور اپڈیٹ کر رہے تھے اس معاملے پر کہ 2016 میں یہ منصوبہ شروع ہونا تھا اور 2018 میں اس منصوبے کو مکمل ہو جانا تھا. علاؤالدین یہ بتائے گا کہ حکومت سندھ کی جانب سے، جی علاؤالدین سے دوبارہ بات کرنے کی کوشش کریں گے. کراچی میں جو جرائم کی شرح عروج پر ہے اس پر ہمارے نمائندے ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے کہ 2018 تک اس منصوبے کو مکمل ہو جانا چاہیے تھا، لیکن حکومت سندھ کی جانب سے اس طرح سے اس منصوبے پر کوئی توجہ نہیں دکھائی گئی ہے، اور جس طرح سے پتہ چل رہا ہے ترجیحات کا کہ حکومت سندھ کی ترجیحات اس جانب نہیں ہیں. حکومتیں بدل گئیں لیکن پنجاب کے حالات نہ بدل سکے. پنجاب کے 6500 گاؤں بجلی سے محروم ہیں. دیہات کے مکینوں کے لیے بجلی کا حصول اب صرف ایک خواب بن کے رہ گیا ہے. محکمہ توانائی کے ذمہ داران نے سارا ملبہ سابقہ حکومت پر ڈال دیا ہے. اسی حوالے سے مزید بات کر لیتے ہیں. نمائندہ نیو نیوز عدنان عزیز ہمارے ساتھ موجود ہیں. عدنان بتائیے گا، پنجاب حکومت اگلی حکومت نے پچھلی حکومت پر سارا ملبہ ڈال دیا ہے، اب تک کیوں اس پر کوئی توجہ نہیں دی گئی؟ دیکھیں عائشہ، سب سے جو دلچسپ بات وہ یہاں پہ دیکھنے میں آ رہی ہے، یہ تو پنجاب کے علاوہ جو پنجاب کا جو صوبائی دارالحکومت ہے اس کے بھی 16 جو دیہات ہیں وہ بجلی سے محروم ہیں، کیونکہ یہاں پہ حکومتیں تو پنجاب کی بدل گئی، لیکن جو علاقہ مکین ہے جو پنجاب کے، جس کی اگر بات کی جائے ان کے گاؤں کی جو تعداد ہے وہ تقریباً 6500 کے قریب بنتی ہے، جو علاقہ مکین بجلی کی سہولت سے محروم ہے. لیکن یہاں پہ سب سے دلچسپ بات یہ بھی ہے، جیسا کہ سابقہ حکومت کے بعد ابھی تو جو سابقہ حکومت میں جو اس کا گڑھ تھا، جو ڈی جی خان جو بہاولپور کے علاقے تھے، وہاں پہ جو گاؤں کی جو تعداد ہے وہ سب سے زیادہ ہے، وہ تقریباً 1200 کے قریب ہے، 1200 کچھ ہے. لیکن یہاں پہ یہ بھی دیکھنے میں آ رہا ہے کہ جو سابق وزیر تھے توانائی کے ڈاکٹر ندیم اختر ملک، انہوں نے باقاعدہ بھی یہ اعلان کیا تھا کہ 32 ارب روپے سے، جو کیونکہ اعلان تو یہی کیے جاتے ہیں کہ جہاں بھی بجلی نہیں ہوگی کہ ہمارا جو خواب ہے، یہ گورنمنٹ کا اعلان ہے، گورنمنٹ کا اعلان ہے کنزیومر کے لیے کہ ہمارا خواب ہے کہ جہاں پہ بجلی نہیں ہوگی وہاں بجلی کی جو سہولت ہے وہ مہیا کی جائے گی. جی ہم 32 ارب کی لاگت سے یہاں پہ سولر پینل لگائیں گے، جس سے صرف عوام کو صرف تھوڑی ہی دیر کے لیے لالی پاپ دیا گیا، نہ وہاں پہ سولر پینل لگ سکے، نہ وہاں پہ جو 32 ارب کا جو سابقہ حکومت نے جو اعلان کیا تھا وہ بھی ان کے پورا نہ ہو سکا، کیونکہ ان کا یہی کہنا ہے جی اب ہماری حکومت نہیں ہے، جو سابقہ حکومت ہے وہ اس چیز کی ذمہ دار ہے. لیکن جو سابقہ حکومت ہے ان کا جو ملبہ ہے وہ یعنی کہ موجودہ حکومت پہ ڈالنے کی کوشش کی جاتی ہے کہ ہمارا اس میں کسی قسم کا کوئی قصور نہیں ہے، کیونکہ ہم نے تو اعلان کیا تھا، ہم نے سولر پینل بھی لگائے تھے. لیکن یہاں پہ کیونکہ لاہور کے علاقے بھی شامل ہیں، اگر ان علاقوں کی بات کریں جہاں پہ جو بجلی سے محروم ہے، اس میں سب سے جو پہلا نمبر آتا ہے وہ بہاولپور کا آتا ہے. بہاولپور میں تقریباً 1200 کے قریب 1200. اچھا، آپ کہہ رہے ہیں کہ 32 ارب روپے اپروو ہوئے تھے اس منصوبے کے لیے کہ سولر پینل لگائے جائیں گے ان علاقوں کے لیے جہاں پر بجلی نہیں ہے، تو ان پیسوں کا کیا بنا جو بجٹ اپروو ہوا تھا؟
देखिए आयशा, बजट की जो वही बात कर रहा हूँ कि 32 अरब इसके मंजूर भी हुए थे। जो साबका मिनिस्टर हैं नदीम अख्तर मलिक साहब, उनसे इस बारे में बात भी हुई थी। उन्होंने कहा था जी हमने बाकायदा इसका बजट अप्रूव भी किया था और बाकायदा PND में इस केस को लेकर गए थे कि PND की तरफ से फ़ाइल दबा ली गई थी, PND की जानिब से हमें फ़ंड मंजूर नहीं किए गए। लेकिन ज़राए का ये कहना है कि बाकायदा फ़ंड भी मंजूर किए गए हैं, फ़ंड जारी भी किए गए हैं, लेकिन फ़ंड कहाँ गए हैं इसका जवाब देने को कोई भी तैयार नहीं है। ना मौजूदा हुकूमत के जो अहदेदारान हैं, ना साबका हुकूमत के अहदेदारान हैं। अभी जैसा कि दिलेशक साहब हैं जो इस वक्त जो मिनिस्टर हैं तवानाई के, उनसे भी इस बारे में बात करने की कोशिश की गई, तो उनका भी यही जवाब था कि हमारे जो तर्जमान हैं वो इस मामले को चेक कर रहे हैं कि पैसे कहाँ लगे थे, पैसे कहाँ से आए थे, PND से क्यों मंजूर नहीं हुए हैं। जो इतनी तादाद है, क्योंकि उसमें लाहौर शहर भी शामिल है, ये सबसे बड़ा आलमी है। पंजाब हुकूमत जो DG खान है, जो साबका जो वज़ीर पंजाब थे उस्मान बुज़दार, उनका वो गढ़ था, DG खान उनका गढ़ था, क्योंकि वहाँ पे जो बहावलपुर के इलाके में उनका काफ़ी असर और रसूख था। वहाँ पे जो गाँव की तादाद है वो सबसे ज़्यादा है, वहाँ पे फंड इस्तेमाल नहीं हुए हैं। तो इसके अलावा जो लाहौर शहर है, जो मौजूदा हुकूमत से पहले जो हुकूमत थी उनका भी जो लाहौर शहर है वो गढ़ था। लेकिन यहाँ पे भी ऐसा कोई देखने में नहीं आ रहा कि लाहौर शहर के भी 16 गाँव ऐसे हैं जो बॉर्डर एरिया के करीब है जहाँ पे बिजली मौजूद ठीक है। अदनान, आप कह रहे हैं कि लाहौर के भी 16 ऐसे देहात हैं जहाँ पर बिजली नहीं है। बहुत शुक्रिया अदनान अजीज, हमें तमाम तरह मामले पर अपडेट कर रहे थे। चेयरमैन रेसलिंग पाकिस्तान मोहम्मद नदीम पहलवान और गोल्ड मेडलिस्ट रेसलर खलीफा ने लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स का दौरा किया है। मारूफ रेसलर्स ने चैम्बर ऑफ कॉमर्स लाहौर के बिला मुकाबला मुंतखब होने वाले अहदेदारों सदर काशिफ अनवर, सीनियर नायब सदर जफर महमूद चौधरी, नायब सदर अदनान खालिद भट्ट को मुबारकबाद पेश की। सदर लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने पहलवानों के मसाइल के हल की यकीन दहानी के साथ साथ आइंदा साल देसी दंगल कराने का ऐलान भी किया। मैनेजिंग डायरेक्टर लाहौर सेंटर पार्क उस्मान अनवर और चेयरमैन अर्बन डेवलपर्स मियां ताहिर जावेद भी मौजूद थे।